محترم محمود خان اچکزئی، سردار اختر جان مینگل، کبیر محمد شہید صاحب، داؤد شاہ، ولایت حسین صاحب، ان کی اجازت سے آپ سب پریس کے دوستوں کی اجازت سے سب سے پہلے میں شہدائے 2 ستمبر کے چبے کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. ان کی درجات کی بلندی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اور واقعے میں جتنے بھی ہمارے بھائی زخمی ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ صحت یاب ہو. بڑی تفصیل سے بات ہوئی، ہر اینگل پہ بات ہوئی. میں اتنا کہتا ہوں کہ جو مظلوم و محکوم اقوام بلوچ پشتون اس ریاست کے باؤنڈری میں جب سے آئے ہیں 47 کے بعد سے، یہ اس دن سے لے کے آج تک اس طرح کے واقعات سے مسلسل وقتاً فوقتاً دوچار ہوتے چلے آ رہے ہیں. یہ سلسلہ جو 2 ستمبر کو پیش ہوا، یہ سلسلہ یوم بابڑا ہمارے سامنے ہے. یہ سلسلہ لیاقت باغ 23 مارچ 73 ہمارے سامنے ہے. یہ سلسلہ 8 اگست جیسا دلخراش واقعہ ہمارے سامنے ہے. یہ سلسلہ ثانیہ 21 یعنی ہمارے پور جیسے بچوں کو بھی نہیں بخشا گیا، اور جب ایک ماں روتی ہوئی ایک جرنل سے فریاد کرتی ہے تو اس جرنل کا جواب ایک ماں کو بجائے اس کے کہ اس کو تسلی دے، ان کے بچوں کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی یقین دہانی کرائے، اس کو کہتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے ایک اور بچہ پیدا کرے. یہ سلسلہ 8 اگست ہو یا 2 ستمبر ہو، ان اقوام کے ساتھ ایک تسلسل کے ساتھ پیش چلا آ رہا ہے. یقیناً ہم کوشش بھی کرتے ہیں، ہمارے رہبر قیادت نے، مظلوم و محکوم اقوام کی رہبری نے، کہ تمام تر مظالم کے باوجود اس ریاست کے ساتھ ہم 2 قدم آگے بڑھ کر چلیں. لیکن جہاں تک یہ مسلسل پے در پے واقعات اور اس کے نتائج پہ اگر نظر رکھی جائے تو یہ بات ایک کلیئر میسج ہے مظلوم و محکوم بلوچ پشتون اقوام کے لیے کہ اس ریاست کو ان اقوام سے نہیں، ان کے دھرتی سے سروکار ہے. بامر مجبوری تو نقشہ پاکستان میں انہوں نے بلوچستان اور پختونخوا تو ڈال دیا ہے، لیکن وہ زمین کے حوالے سے ہے، دھرتی کے حوالے سے، اقوام کے حوالے سے نہیں ہے. اللہ نے ہمیں نعمتوں سے بہرمند زمین دھرتی عطا فرمائی ہے. پتہ نہیں اس کو ہم اپنی خوش قسمتی سمجھے یا بدبختی سمجھے کہ آج ہمارے گلے پڑ گئے. سمندر سے لے کے دنیا جہاں کے قدرتی وسائل جو زمین کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، وہ ہمارے گلے پڑ گئے. وہ ہمارے خون آلود لاشوں کی صورت میں ہمیں اس کے نتائج مل رہے ہیں. تو یقیناً ان اقوام نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا یہ روش ہم مزید برداشت کر سکتے ہیں، اس روش کے ساتھ مزید چلتا جا سکتا ہے. یہ بات واضح ہے کہ آج چوکیدار نے اپنے آپ کو مالک بنا بٹھایا، یعنی اس کا سوائے چوکیداری کا اور کوئی کام آئین پاکستان میں نہیں ہے. یہ نہیں کہ یہاں بیٹے تشریف فرما قیادت یا کانفرنس نیشنلسٹ مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے لیڈرشپ اور کارکن کہتے ہیں، یا آئین پاکستان کہتے ہیں. لیکن یہ بدمست چوکیدار آج حکمرانی بھی ہاتھ میں لیے بیٹھے ہیں. یہ بدمست چوکیدار آج پارلیمنٹ پہ قبضہ جمائے بھی بیٹھے ہیں. یہ بدمست چوکیدار آج عدلیہ کا ستیاناش بھی کر چکے ہیں. ایون یہاں تک کہ یہ چوکیدار ٹیکہ داری اور
कंस्ट्रक्शन पे उतर आया है। आज भी कोई क्वेटा में जाके देख ले, बाकी पाकिस्तान को छोड़ दे, जहां पे आपको कोई बड़ा माल नजर आएगा, जहां पे आपको कोई बड़ी बिल्डिंग नजर आएगी, वो चौकीदार की मलकियत में होगी, वो आम आदमी की नहीं होगी। और जहां पे कोई सिविलियन कारोबार भी करना चाहता है, कोई हाउसिंग स्कीम का सोचता है, कोई बिल्डिंग बनाने का सोचता है, तो उसके लिए मसले मसाइल खड़े करके कि उनके DHA से लेके माल तक, यहाँ तक कि खेती बाड़ी पे भी उतर आया है। बॉर्डर हमारे इन्होंने बंद कर दिए। जिस तरह यहाँ पे बात हो रही है, चाहे बलोच बेल्ट हो चाहे पश्तून बेल्ट हो, जो दाढ़ी के मजदूर दाढ़ी निकालने के लिए सुबह सवेरे निकलते, शाम को बच्चों की उससे गुजारा पेट पालते थे, उसकी हालत हमारे सामने। 1891 से एक चलता हुआ सिलसिला जो ड्यूरेंट लाइन पे आ रहा था, इन्होंने बैक कलम में जुम्बिश इसको खत्म किया। न रिश्तेदारियों का ख्याल रखा, न कारोबार का ख्याल रखा, न भाईबंदी का ख्याल रखा। इस तरह के घरों को भी तकसीम किया गया कि मेहमान खाना एक तरफ हो, घर दूसरी तरफ हो, मस्जिद एक तरफ हो, मेहराब दूसरी तरफ हो। तो यकीनन इस चौकीदार से कुल क्या भी बात करनी होगी। लोग तो कहते हैं जो भी वाक़या यहाँ पे होता है, फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल खवारिज, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि फितनतुल हिंदुस्तान या फितनतुल खवारिज का मसला तो उन लोगों से है जो इक़्तिदार पे बड़ा जमा है, जिनके पास इक़्तिदार की कुर्सियाँ हैं, जिनके पास कुव्वत है, जिनके पास फैसला साजी के इख्तियारात है। ये जो हम इधर बैठे हुए लोग हैं, हमारे पास कौन सी इख्तियारात है कि हमारे कत्ल को या फितनतुल हिंदुस्तान से कोई जोड़ते हैं या फितनतुल खवारिज से कोई जोड़ते हैं। इन उससे हमारे साथ उसकी क्या दुश्मनी है? हम तो न इक़्तिदार में हैं, न फैसला साजी में है, न हमारे पास ऐसे कोई इख्तियारात है। ये बात क्लियर है कि बलोच पश्तून अक़वाम को मसला फितनतुल अपारा इस्लामाबाद से है और फितनतुल रावलपिंडी GHQ से है। हमें मसला इनसे है, चूँकि इनकी खुनख्वार नजरें हमारे वतन के वसाइल पे है। करप्शन इन्होंने किया है, पापाचोन से लेके कनाडा की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियों तक, लंदन के महलात तक, सब कुछ करप्शन के जरिए इन्होंने बनाए। आज जब ये मकरूज होके दर पदर की भीख मांगने दूसरों के चौखट पे सर रखे पड़े हुए हैं, तो ये हमारी तरफ मुड़ के आ रहे हैं कि सेंधक में तो सोना है, हरनाई और शारगे में तो कोयला है, गवादर तो गहरा समंदर है, चमन पे तो ट्रेड के अरबों रुपए की कारोबार है। इसी तरह पंजगूर मन से लेके ईरान के साथ, यानी आपके DC तुर्बत जो है 25 करोड़ रुपए उसकी बोली है। 25 करोड़ रुपए एक डिप्टी कमिश्नर की जब बोली हो जाए तो कोई हमें बता दे कि क्या हो जाए कि वहां पे अमन वामन संभालेगा या पहले आप 25 करोड़ रुपए वो संभालेंगे। तो आज वो पश्तूनख्वा और बलूचिस्तान में खून की होली खेल कर उसके नतीजे में यहाँ के वसाइल को कब्जा करने की कोशिश करेंगे। हर प्रोजेक्ट एक नहीं, इनका हर मंसूबा हमारी दुश्मनी से शुरू होता है, हमारी दुश्मनी पे खत्म होता है। सैलाब आया है, मसला रावी सतलज चिनाब के नहरों से है, शोशा कालाबाग का छोड़ा गया। यानी अजीब व गरीब मुंतक है। कालाबाग का सैलाब से क्या ताल्लुक है? यानी दरिया सिंध पे कब्जा करके पश्तूनों को डबो के मरवा देना, सिंधियों को प्यासे मरवा देना। मतलब आपका हर मसला जो है वो इन अक़वाम से है। यकीनन ये सिलसिले, ये जो नामनिहाद आपने हुकूमतें बनाई है, हमें पता है ये तो नौकर के नौकर है। इनकी क्या इख्तियारात होंगे, इनके क्या फैसले करने होंगे, ये तो नौकर के नौकर है। इन्होंने तो अपनी नौकरी करनी है। मतलब इसी हुकूमत के इन्हीं MPs की अपनी बात है कि जब पिछला अभी जो बजट पेश हुआ है, इस बजट में चंद नाराज हुए थे कि हमारा बजट कम है, तो एहतिजाज पे CM के पास गए। CM ने उनको कहा कि जाओ हबीब नाले के उस पार, बजट तो वो तकसीम करते हैं। उधर जब
एहतिजाज की शक्ल में 4-5 कहते कि जाके जब बैठ गए उन्होंने कहा जी क्या मसला है, तो उनको जवाब में कहा कि एक तो बलूचिस्तान में ये मसले है, एहतिजाज है, हम किसी के पास जा नहीं सकते, हमें फार्म 47 के लोग कहा जाता है, हम तो बिल्कुल किसी के पास जा नहीं सकते, लेकिन अभी बजट में भी अगर आप कट लगाएंगे तो हमारे पास तो लोगों को मुंह दिखाने के भी हम काबिल नहीं रहेंगे। तो इनको जवाब में कहते हैं क्या कहा गया कि आप कौन से पब्लिक के वोट से आए हो, आपको हमने मुंतखब किया है, बिठाया है, सेलेक्ट किया है, आप आराम से कभी हमने आपको कहा कि आवाम के पास जाए। इसी हकी ग्राउंड में पिछले साल पूरा हुकूमत बलूचिस्तान निकल आया, पूरा हुकूमत बलूचिस्तान 500 बंदे ला के उस स्टेडियम में इन्होंने नहीं बिठाया, पूरा बलूचिस्तान सब जमातें, लेकिन यहाँ पे ये ख्वार गरीब लोग, इनकी क़यादत जिसके पास न वजारत है, न कुर्सी है, न इख्तियारात के मंबे है, ये एक कॉल देते हैं, हज़ारों की तादाद में लोगों को जमा करते हैं और फिर आप उसमें बम ब्लास्ट करते हो। और कहा भी ये जाता है इनडायरेक्ट ये भी कहा जाता है कि इनका खुद करदा है। ये अजीब व गरीब सोच होगी, प्लानिंग होगी कि BNP का जलसा है, अख्तर जान किसी को खुदकुश ट्रेन करके कि जाओ फिर हमारे वर्कर पे खुद ही ब्लास्ट कर दे। ये कोई मुंतिक है? कोई ग्रेनेड फेंका जाता, कोई बम ब्लास्ट होता, तब जाके भी आप कोई बात कर सकते थे, लेकिन जब आपने एक खुदकुश ट्रेन करके उधर तक पहुंचाने की कोशिश की, यकीनन जिस तरह कहा गया 2 सितंबर का प्लान ये था कि एक दिन में इस